Assalamualaikum everyone. In today's video, we are going to discuss the stability of free radical. In the previous lecture, we have discussed the definition, preparation, source, and properties of free radical. And now we are discussing the stability of free radical, that why they are stable and the main reason of their reactivity. Also, some factors we discuss it, and we discuss how these factors can affect the stability of free radicals. So the first factor which can affect the stability is the bond dissociation energy, and the bond dissociation energy is inversely proportional to the stability of free radical. So how it is, the bond dissociation energy is correlated to the stability of free radical. Lower the bond dissociation energy, more stable will the free radical. Mean whenever a compound atom ion which have low dissociation energy have high stable free radical. The word dissociation energy means when a bond breaks. For example, you see here the methane, and in this reaction, methane is releasing its one hydrogen. So, the free radicals always form from the cleavage of a covalent bond. So this is homolytic cleavage of covalent bonds, and due to this cleavage, free radicals are formed. So the bond association energy means the energy required to break that bond. If more energy is needed, means the more strong will be the bond it is. And the lower energy dissociation energy means that this bond is weak, and it can easily break with the low energy. So the relation of bond dissociation energy is indirectly proportional to the stability of free radical. So here you can see for methane the energy is 102 kilocalories per mole. But now we use another compound, and this compound is ethane. And for ethane, the energy decreases to 98 kilomoles. For propane, the energy further decreases to 95. For isopropane, 86 kilomoles of kilocalories energy is required. So you see from up to down the energy decreases, and therefore the stability increases. Okay, you can see the example of benzene in it, and the benzene had dissociation energy of 102 kilocalories, and another example of alkyl halide is also given. So the energy relationship and the stability relation is given to you, that whenever the energy decreases, stability increases. So this is the first factor which affect the stability of free radical. Now we move on to the next and the second factor which affect its stability. So now here another graph of this bond association energy is given, that we have plotted a graph of between the bond association energy and the stability of free radical. The bond association energy is on y-axis while the radicals are on x-axis. Now you have simple radical, 1 alkyl radical, 2 alkyl radical, 3 radical. So it's mean the radical presence of the radical on which carbon, primary carbon, tertiary carbon, or secondary carbon this is. So you can see the graph is decreasing. It means the bond association energy has indirectly relation with the stability. So now at the end you will say the order of stability, that tertiary radical is more stable than the secondary, then primary, and then simple, while the energy is less for tertiary radical, then more energy, the most energy is of simple radical. You can see here simple radical has more energy, then the energy is going to decrease. So this was the relation between the bond dissociation energy and the stability of free radicals. Now the second factor which can affect the stability of free radical is the hyperconjugation. So the hyperconjugation has direct relation with the stability of free radical. So in the first line it is explaining that the more the alkyl substituent on the radical carbon atom, more stable it will form hyperconjugation. Why it is? If you remember the concept of hyperconjugation, and if you don't know, then visit my channel. I have also given the video upon the hyperconjugation. Now here you can see this is the hyperconjugation, that a free radical is rotating over the
molecule and sharing its electrons with it. First, the hydrogen free radical is formed, then another hydrogen, then tertiary hydrogen is formed. So in that way, the alkyl free radical is going to rotate on a molecule. So this is called as hyperconjugation. So जितने ज़्यादा इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन की स्ट्रक्चर्स बनेंगी, उतना ज़्यादा ही स्टेबल होगा वो फ्री रेडिकल. सो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इंक्रीजेज बाय द एटॉमिक सब्स्टिट्यूएंट, कि अगर आपका कोई भी सब्स्टिट्यूएंट या कोई ब्रांच आती है, जैसे इसके एग्जांपल में 3 फिनाइल ग्रुप्स आ गए हैं, 3 एरोमेटिक बेंजीन रिंग आ गया है, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ये टर्शियरी रेडिकल है और ये सबसे ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी है. और जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है उसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? यस, वेरी गुड, उसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होती है. सो यहाँ पर क्या होगा कि जितने ज़्यादा एरोमेटिक होगा उतना ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, उतने ज़्यादा ही उसके हाइपर कंजुगेशन की स्ट्रक्चर्स बनेगी. अनस्टेबल चार्जेस ऑन द मॉलिक्यूल डिस्पर्स ओवर द स्ट्रक्चर. ठीक है, कोई भी चार्ज आता है वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, वो रेडिकल का चार्ज भी हो सकता है, तो वो उसके ऊपर रोटेट करेगा, डिस्पर्स होगा. ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो टर्शियरी रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी एंड देन आखिर में सिंपल होगा. और टर्शियरी की एनर्जी सबसे कम होगी और सबसे ज़्यादा एनर्जी, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा सिंपल वाले की होगी. ओके, सो यहाँ तीसरा इफेक्ट दिया गया है एंड दैट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट, के उसका क्या इफेक्ट होता है. तो इंडक्टिव इफेक्ट में आपको पता है कि कोई ना कोई ग्रुप अटैच होता है और उस ग्रुप का इफेक्ट होता है कार्बन के ऊपर कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. सो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि किस नेचर का ग्रुप है. जिस नेचर का ग्रुप होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी को इफेक्ट करेगा. अगर फॉर एग्जांपल हम कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ले लेते हैं, अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से होते हैं? जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर देते हैं. अब ऐसे ग्रुप्स की एग्जांपल क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, CH3 ग्रुप. सो ये उसकी एग्जांपल्स हैं. ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं. सो जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रिलीजिंग ग्रुप होगा उतना ज़्यादा ही वो स्टेबल होगा. इसके बदले में अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को देखें, जो अपने दूसरों से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे ग्रुप्स की एग्जांपल में आ जाएगा CF3, CN एंड कार्बोक्सी ग्रुप. सो ये ग्रुप्स वो हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं और इनकी स्टेबिलिटी लेस होती है. सो ये देखा कि आपने फ्री रेडिकल्स के ऊपर ये चीज़ भी इफ़ेक्ट कर रही है कि ग्रुप के साथ कौन सा अटैच है. अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा और अगर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो कम स्टेबल होगा. सो यहाँ फोर्थ एक और करेक्टर आ गया एंड डेट इज़ द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, कि आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है. और डबल बॉन्ड की प्रेजेंस आपको इलेक्ट्रॉन देने का बायस बनती है, जिसकी वजह से ज़्यादा स्टेबल होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, साथ ये बेंजीन की रिंग फिनाइल ग्रुप अटैच है और ये अल्काइल हैलाइड है. सो इसमें आप लोग देख सकते हो कि ये बॉन्ड टूटने की वजह से फ्री रेडिकल्स बन गए हैं और इतनी एनर्जी रिलीज़ हुई है. अब यहाँ पर आप देखें कि ये फ्री रेडिकल आगे जाके अपने जो फ्री रेडिकल है उसको पूरे रिंग के ऊपर डिसोसिएट करेगा, डिस्पर्स करेगा. जैसे पहले, अब अगर यहाँ पर था फ्री रेडिकल, अब क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड कहेगा कि मैं इसकी कमी को पूरा करता हूँ, क्योंकि जहाँ भी फ्री रेडिकल होता है इसका मतलब क्या है कि वहाँ कोई ना कोई चीज़ की कमी है. सो ये बॉन्ड कहेगा कि मैं इसकी कमी को पूरा कर देता हूँ. सो ये वाला बॉन्ड यहाँ आने की कोशिश करेगा और ये वाला भी यहाँ आने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये बॉन्ड जब इधर आएगा तो इस तरफ एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, बिल्कुल यही चीज़ इधर हुई है कि ये वाला बॉन्ड इस तरफ जब आया तो यहाँ पर वही फ्री रेडिकल यहाँ आ गया और यहाँ डबल बॉन्ड बन गया. अब ये वाला फ्री रेडिकल कहेगा मैं यहाँ आता हूँ और ये वाला बॉन्ड कहता है कि ये मैं यहाँ आके तुम्हें संभालूंगा. और जो पॉजिटिव चार्ज फ्री रेडिकल होगा वो यहाँ पर आ जाएगा. बिल्कुल देखिए यहाँ पर आ गया ये. अब ये दोबारा कहेगा कि मैं इस तरफ आ जाता हूँ, ये बॉन्ड कहेगा मैं तुम्हारे साथ मदद करने आता हूँ और फ्री रेडिकल इस तरफ आ जाएगा. ये आप लोग देख सकते हो. अगेन दोबारा डिस्कशन होगी, ये वाला फ्री रेडिकल कहेगा मैं यहाँ आता हूँ, ये जो बॉन्ड है ये कहता है मैं वापसी टूट के आता हूँ और वापसी जो फ्री रेडिकल है वो इसी C के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा. सो इस तरह ये रेजोनेंस हो रही है पूरे फ्री रेडिकल की और पूरे
रिंग के ऊपर। सो जितनी ज़्यादा ये रेजोनेंस है देखिए उतनी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बन रही हैं। और आपको पता है कि जब भी रेजोनेंस में या हाइपर कंजुगेशन में इस तरह की चीज़ों में जब भी स्ट्रक्चर्स ज़्यादा बनती हैं तो इस मीन उतना ज़्यादा ही वो स्टेबल कंपाउंड है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब भी एक सब्स्टिट्यूएंट के अंदर एक एरोमेटिक रिंग आ जाती है, बेंजीन की रिंग आ जाती है, वो उतना ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए देख रहे हो कि आपके जैसे ही डिस्पर्शन हो रही है उतना ज़्यादा ही वो स्टेबल बनता जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो कि ये अल्काइल फ्री रेडिकल है जिसके अंदर डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। और यहाँ पर अगर ये टूट के फ्री रेडिकल बनाते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह फ्री रेडिकल जो है वो पूरा डिस्पर्स होगा पूरे कंपाउंड के ऊपर। तो ये फ्री रेडिकल यहाँ पर बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा और यहाँ से ये डबल बॉन्ड कहेगा कि मैं इस तरफ आता हूँ और फ्री रेडिकल इस कार्बन के ऊपर चला जाएगा। सो इस तरह फ्री रेडिकल इन दोनों कार्बन पे जा सकता है और इसलिए अल्काइल जो रेडिकल है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अल्काइल रेडिकल मतलब बेंजीन की रिंग से भी ज़्यादा। बेंजाइल कौन सा होता है जिसमें बेंजीन की रिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है, और ये अल्काइल रेडिकल है। सो अगर हम स्टेबिलिटी देखें तो जितनी ज़्यादा फिनाइल ग्रुप और डबल बॉन्ड होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। अगर ऑर्डर देखें तो अल्काइल रेडिकल का मोर है स्टेबिलिटी बेंजाइल से, बेंजाइल की ज़्यादा स्टेबिलिटी है टर्शरी से, फिर सेकेंडरी आता है, फिर प्राइमरी और फिर सिंपल आता है। और एनर्जी की बेसिस भी आप देख सकते हैं कि इसकी 60 है, इसकी 68 एनर्जी है, फिर 79, 95, 98 और एंड में 102 किलो कैलोरीज एनर्जी आ रही है। तो एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, स्टेबिलिटी इस तरफ इंक्रीज़ हो रही है, एनर्जी इस तरफ इंक्रीज़ हो रही है। सो स्टेबिलिटी और एनर्जी का इन्वर्स रिलेशन है, तो ये वही चीज़ दी हुई है। अच्छा, फिफ्थ जो फैक्टर है जो इफ़ेक्ट करता है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल का, एंड दिस फैक्टर इज़ अबाउट द प्रेजेंस ऑफ हेट्रोएटम। आपको पता है हेट्रोएटम्स क्या होते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स प्रेजेंट होते हैं हमारे किसी भी कंपाउंड के ऊपर, हम उसको हेट्रोएटम कहते हैं। हेट्रोएटम में कौन कौन आता है? नाइट्रोजन आ जाता है, फ्लोरीन आ जाता है, फ्लोरीन आ गया, इस तरह के जो सल्फ़र हो गया, तो ये हेट्रोएटम कहलाते हैं। सो अब क्या है कि जितना ज़्यादा हेट्रोएटम जो है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा उतना लेस स्टेबल फ्री रेडिकल होगा। ठीक है, यानी इसका रिलेशन भी इनडायरेक्ट है। ठीक है, उसके साथ। सो अगर हम पहला एग्जांपल वही CH3 की देखते हैं तो उसमें 104 जो है वो एनर्जी आ रही है। दूसरे में जब हमारे पास नाइट्रोजन आ गया है, तो नाइट्रोजन आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सो इसकी वजह से एनर्जी देखिए 103 आ जाती है। सॉरी, यहाँ पर इस चीज़ को करेक्ट कर लें, ये 108 है। सो आप देख रहे हो कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, 104 से 108 एनर्जी हो गई है, बट उतना ही ज़्यादा वो कम स्टेबल होगा। मतलब यहाँ से अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो आपकी जो स्टेबिलिटी होगी वो तो डिक्रीज़ करेगी, लेकिन जो आपकी एनर्जी होगी वो इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, एनर्जी देखें पहले 104 था, फिर 108, फिर 119, फिर 136, तो इस तरह हो रहा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी यही है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव आप एटम लाएंगे, हेट्रो एटम लाएंगे, उतनी ज़्यादा ही एनर्जी होगी और उतना कम स्टेबल होगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि वाटर की एग्जांपल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो और ज़्यादा एनर्जी हो गई है लेकिन स्टेबिलिटी कम है। यहाँ हाइड्रोजन फ्लोराइड में देख सकते हैं आप, तो मिथाइल ग्रुप की यहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी वो होगी स्टेबिलिटी की बात करें, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर ये स्टेबल है, फिर ये स्टेबल है, फिर ये, इस तरह से स्टेबिलिटी की डिक्रीजिंग जो ऑर्डर है वो दिखाया गया है। और एनर्जी भी इसी तरह से हमारी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन जो स्टेबिलिटी जो है वो स्टेबिलिटी क्योंकि यहाँ से यहाँ इंक्रीज़ हो रही है तो एनर्जी यहाँ से यहाँ डिक्रीज़ होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, सो ये हमारा था कि हमने देखा कि किस तरह से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पर। सो डैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं आपको उसे ज़रूर आंसर दूँगी। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक टू माई वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव्स, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।